Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, I am going to solve some very important problems, that is hot problems based on the de Broglie relation or de Broglie wavelength of chapter 11 Dual Nature of Radiation for class 12 Physics book 2. This video should be very helpful for those students preparing for CBSE 12 board term 2 examinations and also for other 12 boards students, that is ICSE 12 board and different state boards students. First of all, problem number 1. A proton and an electron have same velocity. Which one has greater wavelength and why? एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा दोनों में से? मतलब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो कि सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनमें से किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का अधिक वेवलेंथ होगा या प्रोटॉन का अधिक वेवलेंथ होगा? यह आंसर हमें ऑब्टेन करना है. तो यूजिंग द de Broglie रिलेशन वी हैव de Broglie wavelength for a material particle is given by lambda is equal to h by mv. This is de Broglie relation. Here we have it is given that velocity or speed of proton Vp is equal to v. दोनों का स्पीड सेम है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का. तो de Broglie wavelength प्रोटॉन के लिए लिखा जा सकता है lambda p इक्वल टू h अपॉन mp, और वेलोसिटी तो vp, वेलोसिटी तो सेम है, vp इक्वल टू v, तो इसको v सपोज किया जा सकता है. सो वी हैव सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड h इज आल्सो कांस्टेंट, सो वी हैव lambda इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. Since velocity is constant for both, velocity is equal for both proton and electron, so we can take it Vp is equal to v. Vp is equal to velocity of proton, v is equal to velocity of electron, and it is equal to v. Say it is equal to v. So v is equal constant for proton and electron both according to the problem, and Planck constant h is also constant. So lambda is inversely proportional to m. We know mass of electron is smaller than mass of proton. तो जिसका मास स्मॉलर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉलर है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? क्योंकि मास वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर वी हैव lambda e, that is wavelength for electron will be greater than that of the wavelength for proton. So lambda e is equal to lambda p, and this is the answer. That is de Broglie wavelength of, since me is smaller than mp, and lambda, since lambda is inversely proportional to 1 by m, since the mass of electron is smaller than that of the mass of proton, so wavelength of de Broglie wavelength for electron will be greater than that of the proton. This is the answer of this question. तो इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दूसरे मटेरियल पार्टिकल प्रोटॉन के वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन के मास से, और वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. तो जिसका मास स्मॉलर होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, नेचुरल है. नाउ प्रॉब्लम नंबर 2. ए फोटोन एंड ए प्रोटॉन हैज द सेम de Broglie wavelength. That is, it is given de Broglie wavelength for proton, and de Broglie wavelength for proton can be denoted by the symbol lambda p is equal to has same, a proton and a photon and a proton has the same de Broglie wavelength. So that is de Broglie wavelength for photon, that is lambda ph stands for photon, is equal to de Broglie wavelength for proton lambda p. Lambda ph is equal to lambda ph means de Broglie wavelength for photon is equal to de Broglie wavelength, that is wavelength of de Broglie wavelength of a photon and a proton has the same de Broglie wavelength. तो दोनों का, फोटोन का और प्रोटॉन का de Broglie wavelength क्या है? सेम है, और उसका वैल्यू कितना दिया है प्रॉब्लम में? लैम्डा है. इट इज गिवन लैम्डा, इट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2 small m lambda c upon h
टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। हमें प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज EPH, कैपिटल E is the symbol of energy, PH for photon is equal to 2m lambda C upon H times the multiplied by the kinetic energy of photon. So kinetic energy of proton, kinetic energy of the proton, we have to prove that. So we, using the de Broglie relation, we have wavelength for lambda for de Broglie wavelength for photon is lambda is equal to lambda for photon is h upon p, that is mc. Photon travels with the speed of light c. So lambda photon is equal to lambda h upon mc. Lambda photon is equal to h upon mc. Suppose it is equation number 1. Now energy of photon क्या होगा? प्लैंक्स रिलेशन से E इक्वल टू h न्यू, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन EPH, it is denoted by the symbol EPH is equal to h न्यू and न्यू is equal to c by lambda, so it is sc by lambda. Suppose this is equation number 2. So this is all for photon, that is using de Broglie relation for photon, lambda pH stands for photon, pH dot is equal to h upon mc. C is the speed of light, since photon travels with the speed of light c. H is the Planck constant, m is the mass of photon, and EPH is the energy of photon, which is sc by lambda. We have to prove that energy of photon is equal to 2mc lambda upon h times the kinetic energy of proton, that is EP. Now for proton we have lambda. Using again de Broglie relation for proton. So for a proton we have lambda for proton, lambda for p, lambda symbol wavelength का, p for stand for proton, lambda p is equal to h upon mv. V is the speed of proton, which is the material particle. It cannot be equal to a speed of light c. So lambda p, that is wavelength, de Broglie wavelength for proton is h upon mv. Therefore mv is equal to, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब फोटोन की एनर्जी को प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना है. सो mv इजकल टू h बाई लेमडा, दैट इज h बाई लेमडा पी प्रोटोन का वेवलेंथ है, mv इजकल टू इतना. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन h. सो ek काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, दैट इज ep इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m. m से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ep इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, और m से अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, इसे लिखा जा सकता है m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m. m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर mv का वैल्यू यहाँ पर आया है, ये mv हो गया. ये इक्वेशन नंबर लेमडा पी इजकल टू h बाई mv. इक्वेशन नंबर 3 mv इजकल टू h अपॉन लेमडा पी डिनोमिनेटर में आ गया और mv न्यूमरेटर में, एक्सचेंज कर दिया गया दोनों को, लेमडा पी और mv को. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ep इजकल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m. अब इसे लिखा जा सकता है m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन ep इजकल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m. अब इसे लिखा जा सकता है mv, मतलब m स्क्वायर v स्क्वायर इजकल टू mv इजकल टू कितना है, mv इजकल टू h अपॉन लेमडा पी. सो वी कैन राइट हेयर mv in place of mv, m square v square, it is h square by lambda p square. So we can write it as 1 by 2m multiplied by m square into v square, and m square v square is h square by lambda p square from equation 4. Since momentum of proton is mv is equal to h by lambda p using the de Broglie relation, so we can write here h square upon lambda p square. अब चूंकि फोटोन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. अब इसको लिखा जा सकता है h बाई चूँकि लेमडा फोटोन कितना है, h बाई एम सी है, h अपॉन एम सी है, तो इस टर्म में इसको लिखा जा सकता है h अपॉन,
मैंने इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, E k इक्वल टू कितना हो गया, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा p स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा p स्क्वायर, दैट इज वी कैन राइट हेयर, और EP इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा p स्क्वायर इक्वल टू h इंटू एच स्क्वायर को लिखा जा सकता है h इंटू एच अपॉन एच, ये h स्क्वायर को h इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई h लिखा जा सकता है, h इंटू एस सी बाई लेमडा, चूँकि फोटोन का जो मोमेंटम होता है लैम्डा फोटोन इक्वल टू h बाई एम सी, तो h बाई एम सी के रूप में इसे लिख लिया जाए, h अपॉन एम सी, इसको अलग कर दिया जाए, h अपॉन एम सी, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर लिखा जा सकता है एच सी अपॉन 2m तो हो ही गया है, इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, और लैम्डा पी स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है h इंटू एस सी बाई एम सी और 2mc, यहाँ लिखा जा सकता है 2mc इंटू लैम्डा पी स्क्वायर है, लैम्डा पी स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है, लैम्डा पी स्क्वायर, तो लैम्डा को पी स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है लैम्डा पी इंटू लैम्डा पी, तो यहाँ पर लैम्डा पी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा पी, और 2 को भी हम पहले लिख दिए, तो h अपॉन 2mc, सी से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया गया इंटू लैम्डा पी मल्टीप्लाइड बाई एस सी बाई लैम्डा, और एस सी बाई लैम्डा क्या है, एस सी बाई लैम्डा इज एस सी अपॉन लैम्डा, वी हैव रिटन एस सी अपॉन लैम्डा इज ये एनर्जी ऑफ फोटोन, सो इट इज that is kinetic energy of proton EP equals to h upon 2mc lambda multiplied by SC upon lambda is energy of photon, E photon. Therefore we can write here energy of photon. We have to prove that energy of photon equals to 2mc lambda upon h multiplied by kinetic energy of proton. So energy of photon EPH is equal to 2m c lambda upon h multiplied by EP, where EP is the kinetic energy of proton, और यही हमें प्रूव करना भी था कि we have to prove that the energy of the photon is 2m lambda c upon h times the kinetic energy of proton. Here EP is the kinetic energy of proton and EPH is the एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये प्रूव्ड हो गया, यह रिलेशन हमें प्रूव्ड हो गया डी ब्रोगली रिलेशन के यूज से, डी ब्रोगली रिलेशन के यूज से हमें रिलेशन ये प्रूव्ड हो गया, और चूंकि यहाँ पर लैम्डा पी के जगह हमने लैम्डा यूज किया है, क्योंकि फोटोन का प्रॉब्लम में शुरू में ही दिया है, फोटोन का मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा पी एच इजकल टू लैम्डा प्रोटोन, लैम्डा पी एच इजकल टू लैम्डा पी, लैम्डा फोटोन दैट इज लैम्डा पी एच इजकल टू लैम्डा पी दैट इज वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन, दैट इज वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन लैम्डा पी एच इजकल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन लैम्डा पी, और दोनों को हमने दोनों चूंकि इक्वल है तो उसे प्रॉब्लम में भी दिया है कि दैट इज इक्वल टू लैम्डा, सो इट इज लैम्डा, सो लैम्डा यहाँ लैम्डा पी के जगह पर लैम्डा यूज किया गया, लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा पी स्क्वायर का मतलब लैम्डा पी इंटू लैम्डा पी दैट इज, और लैम्डा पी इजकल टू लैम्डा पी इजकल टू लैम्डा फोटोन इजकल टू लैम्डा, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सो इट इज लैम्डा इंटू लैम्डा एंड एस सी बाई लैम्डा इज energy of photon. So we can write here SC for SC by lambda we have written here EPH. EPH is the energy of photon. So EP is equal to lambda by 2mc lambda into EPH. Therefore EPH is equal to 2mc lambda upon h into EP. It is proved. Now problem number 3, which is on the board. A proton and an alpha particle have the same de Broglie wavelength. Determine the ratio of their accelerating potential and number 1 and second their speeds. एक प्रोटॉन है और दूसरा अल्फा पार्टिकल है, दोनों का de Broglie wavelength सेम है, मतलब प्रोटॉन का लैम्डा पी इजकल टू लैम्डा अल्फा, de Broglie wavelength ऑफ प्रोटॉन इज लैम्डा पी, de Broglie wavelength ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लैम्डा अल्फा, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है रेशियो ऑफ, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलेटिंग पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, मतलब वीपी बाई वी अल्फा। पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल वी सिंबल से, तो वीपी इज द एक्सेलेटिंग पोटेंशियल फॉर
प्रोटॉन एंड V अल्फा इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर अल्फा पार्टिकल। दोनों का रेशियो मालूम करना है और सेकेंड पार्ट में दोनों का मतलब प्रोटॉन का और एंड अल्फा पार्टिकल का स्पीड का रेशियो दैट इज VP अपॉन V अल्फा वो भी ऑब्टेन करना है। और यह प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में 2019 एग्जामिनेशन में यह प्रॉब्लम पूछा जा चुका है CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम नंबर 3, इट इज गिवन ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल हैव द सेम de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of proton is lambda p and de Broglie wavelength of the alpha particle is lambda alpha. Wavelength for symbol of wavelength is lambda. For alpha particle is lambda alpha, for proton lambda p and दोनों का वेवलेंथ सेम है। सो सपोज इट इज लैम्डा wavelength of proton, de Broglie wavelength of proton and de Broglie wavelength of alpha particle is same. So it is taken as lambda. Lambda p is equal to lambda alpha is equal to lambda. Say determine the ratio of their accelerating potential. अब accelerating potential का रेशियो निकालना है पार्ट 1 में। That is accelerating potential, symbol for accelerating potential is V, capital V, V for proton and V for alpha particle. Vp and Vp upon V alpha we have to find. The ratio of accelerating potential for proton that is Vp and alpha particle is V alpha. So we have to find, we have to obtain this ratio Vp by V alpha. Again de Broglie wavelength for a charged particle with charge q is given by lambda is equal to h upon root under 2m qv. So de Broglie wavelength for a charged particle of charge q is given by lambda is equal to h upon root under 2m. M is the mass of the charged particle, 2m q and V accelerating potential. That is wavelength in terms of wavelength of a charged particle in terms of accelerating potential. Accelerating potential V is lambda upon h upon lambda is equal to h upon root under 2m qv. तो यहाँ चूंकि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम का रेशियो दोनों के लिए क्या है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो इसलिए हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकालना है। तो अगर इसे स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल चूँकि पोटेंशियल का रेशियो हम निकाल पाएंगे Vp अपॉन V अल्फा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m qv। नीचे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। देयरफॉर वी हैव लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m q, कैपिटल V इज द पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देयरफॉर V इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2m q मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर अब डिनोमिनेटर में चला आएगा और कैपिटल V न्यूमरेटर में, दोनों को एक्सचेंज कर लिया गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ स्क्वायर को। नाउ फॉर अल्फा पार्टिकल, दिस इज द रिलेशन फॉर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल related to wavelength. So we have accelerating potential for proton. So we can write here from this relation we can write accelerating potential for proton is Vp is equal to h square upon 2 mass of proton mp, charge on proton that is qp upon lambda p square। तो चूंकि lambda p और lambda alpha प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का दोनों सेम है, हमने लैम्डा सपोज किया है, सो इट इज टेकन एज लैम्डा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम दिस रिलेशन। यह क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर प्रोटॉन। नाउ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर अल्फा पार्टिकल इज V अल्फा इक्वल्स टू, सिमिलरली वी कैन राइट h स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा multiplied by q alpha. M alpha is the mass of the alpha particle, q alpha is the charge on the alpha particle, and wavelength is same for, again wavelength for alpha particle is also same, lambda alpha lambda p, उससे सपोज किया गया है lambda, so it is lambda square for same wavelength for alpha particle also. This is equation number 2. Now we have to find the ratio of accelerating potential for proton that is Vp and accelerating potential for alpha particle that is V alpha, dividing 1 by 2. Therefore we have Vp upon V alpha equals to h square upon 2mp multiplied by qp multiplied by lambda square upon h square upon 2m alpha
h स्क्वायर अपॉन 2m अल्फ़ा q अल्फ़ा इंटू लेमडा स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब m अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और लेमडा स्क्वायर दोनों का सेम है, अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन का वेवलेंथ सेम है, तो लेमडा स्क्वायर दोनों को हमने सपोज किया है लेमडा, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब हमारा जो रिलेशन है जो हमें ऑब्टेन करना था स्पीड का रेशियो प्रोटॉन का और अल्फ़ा पार्टिकल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वह अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। देयरफॉर Vp अपॉन V अल्फ़ा, Vp इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन, V अल्फ़ा इज द स्पीड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इक्वल टू m अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, m अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई q अल्फ़ा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अपॉन डिवाइडेड बाई mp मल्टीप्लाइड बाई qp। अब अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है, दैट इज वी कैन राइट हेयर m अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इंटू mp। अल्फ़ा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है, सो m अल्फ़ा इन प्लेस ऑफ m अल्फ़ा के जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया 4 इंटू mp मल्टीप्लाइड बाई q अल्फ़ा। चार्ज ऑन द अल्फ़ा पार्टिकल प्रोटॉन का चार्ज का डबल, दैट इज 2 इंटू q अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन 2 इंटू qp, q अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू qp, दैट इज चार्ज ऑन एन अल्फ़ा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज जो होता है प्रोटॉन का चार्ज का डबल, तो इसलिए q अल्फ़ा की जगह 2 qp लिखा गया, अपॉन डिनोमिनेटर में तो mp है ही और qp अपॉन mp मल्टीप्लाइड बाई qp, mp एंड mp न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, qp और qp भी न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। रिलेशन आ गया हमारा Vp अपॉन V अल्फ़ा, देयरफॉर Vp अपॉन फाइनल रिजल्ट पार्ट ए का, इस प्रॉब्लम के पार्ट ए का, प्रॉब्लम 3 का, दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 अपॉन 1, 8 दैट इज Vp इज टू V अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 अपॉन 1, 8 is to 1, दिस इज द ratio of speed of the proton and alpha particle, Vp upon V alpha is equal to 8 upon 1. This is the answer of this part, that is part 1 of this problem, which is problem number 3. Now we have to calculate their speed. The ratio of their speeds means a speed of the ratio of the speed of the proton and alpha particle, that is we have to obtain V, a small v, speed का symbol small v, और एक्सेलेटिंग पोटेंशियल था तो उसका सिंबल हमने यूज किया कैपिटल V। तो नाउ वी हैव टू ऑब्टेन Vp अपॉन V अल्फ़ा, दैट इज स्पीड ऑफ प्रोटॉन टू द स्पीड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विच इज स्मॉल v। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड लेट V अल्फ़ा, Vp द स्मॉल v सफिक्स में p है, तो Vp इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन एंड स्पीड ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल v सफिक्स में फिर अल्फ़ा विच इज द स्पीड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसका रेशियो मालूम करना है। और इसके लिए हमें स्टार्ट करते हैं जो प्रॉब्लम में हमें शुरू में इनिशियली हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। इट इज़ गिवन इनिशियली दैट वेवलेंथ ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम, दैट इज लैम्डा p इक्वल टू लैम्डा अल्फा। तो यूजिंग दिस रिलेशन इट इज गिवन लैम्डा p सिंस लैम्डा p इक्वल टू लैम्डा अल्फा, लैम्डा यूजिंग द de Broglie relation for proton and alpha particle both wavelengths are equal. So lambda is equal to, using de Broglie relation, lambda is equal to h by mv. M is the mass of proton, so h upon h is Planck constant, which is constant for both mp. Lambda p is equal to h by mv, that is momentum of the proton, that is mass of proton mp multiplied by speed of proton vp. So lambda p is equal to h by mp into vp equals to lambda alpha, चूँकि दोनों का वेवलेंथ सेम है प्रॉब्लम में, lambda वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, and wavelength of alpha particle is lambda alpha is equal to h upon m alpha multiplied by v alpha. अब ये से कैंसिल हो गया दोनों साइड में, देयरफॉर mp vp is equal to m alpha v alpha। अब हमें चूँकि vp अपॉन v alpha का रेशियो मालूम करना है, देयरफॉर mp vp वी गेट mp vp is equal to m alpha v alpha, प्लैंक कांस्टेंट दोनों साइड में न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द रेशियो vp अपॉन V alpha, that is the ratio of speed of proton to the speed of alpha particle। प्रोटॉन का स्पीड Vp, अल्फा पार्टिकल का स्पीड V अल्फा, दोनों का रेशियो ऑब्टेन करना है, तो Vp बाई V अल्फा इस रिलेशन से हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। सो Vp अपॉन V अल्फा इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, m अल्फा अपॉन mp, एंड m अल्फा वी नो दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है, सो वी कैन राइट इजिली हेयर m अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू mp डिवाइडेड बाई mp
MP से MP कैंसिल हो गया, दैट इज 4:1. Therefore final result is Vp upon V alpha, that is the ratio of speed of the proton to the speed of alpha particle is 4 times 1, 4:1, that is 4/1. Answer. This is the answer of the part 2, that is the ratio of speed of the proton to the alpha particle Vp by V alpha is equal to 4:1. In last problem number 4, which is an electron and a proton each have de Broglie wavelength of 1.00 nanometer, that is 1 nm. Part A, part 1, find the ratio of their momenta, that is we have to find the ratio of momentum of electron to the momentum of proton, that is P upon Pp. And part 2 of this problem is compare the kinetic energy of the proton with that of the electron. Now solution of this problem. और इस प्रॉब्लम को भी CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉरेन सेट में 2013 में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. तो प्रॉब्लम में दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का और किसी प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का तथा एक प्रोटॉन का de Broglie wavelength सेम है, दैट इज इट इज गिवन lambda E. Lambda is the symbol of de Broglie wavelength of electron, and lambda P is the symbol of de Broglie wavelength of a proton. So both are same, both are equal. An electron and a proton each have de Broglie wavelength of same दिया है कितना 1.00 nanometer nm, 1.00 nm. That is we can write it as 1 nanometer, 1 nm. That is we can write it 1 nm, or in meter we can write it as 1 into 10 to power minus 9 meter. In part 1 of this problem we have to find the ratio of their momenta. मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड प्रोटॉन का मोमेंटम का रेशियो मालूम करना है. मतलब मोमेंटम का सिंबल हम लोग यूज करते हैं स्मॉल p. स्मॉल p इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट इट एज PE, दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. और चूंकि रेशियो मालूम करना है दोनों का, मतलब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मोमेंटम का, तो P इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन P, स्मॉल p सिंबल, स्मॉल p द सिंबल ऑफ मोमेंटम, एंड प्रोटॉन के लिए सिंबल P, दैट इज सफिक्स में P, दैट इज PP. स्मॉल p सफिक्स में P, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. तो दोनों का रेशियो मालूम करना है P अपॉन PP. वी हैव टू फाइंड इट. नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वी हैव टू फाइंड इट. नाउ यूजिंग द de Broglie relation again, we have, since lambda, de Broglie relation is lambda is equal to h upon p. De Broglie relation relate between the wavelength of a material particle and linear momentum of that material particle, which is a small p. H is Planck constant. De Broglie relation, de Broglie wavelength किसी material particle का wavelength और उसका momentum, उस material particle का momentum जिसका symbol small p है, दोनों के बीच relation है lambda is equal to h upon p. Therefore for electron we can write it using from this de Broglie relation we can write wavelength for electron. इस de Broglie relation की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के लिए wavelength लिखा जा सकता है lambda. Therefore we have lambda E. Wavelength for de Broglie wavelength for electron is h upon P. This is equation number 1. And that for proton, that is lambda for P, lambda P, that is wavelength of proton, lambda P we can write it as h upon PP. स्मॉल p सिंबल मोमेंटम का और p सफिक्स में प्रोटॉन के लिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो, दैट इज वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ p अपॉन रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम. मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो मालूम करना है. अब इसे डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग 1/2 वी कैन वी हैव lambda E अपॉन lambda P इक्वल्स टू h by P अपॉन h by PP. h by PP. S कैंसिल हो गया. Therefore we have PP upon P. Lambda E upon lambda P is equal to PP ऊपर चला जाएगा, momentum of proton by linear momentum of electron. And we have lambda E upon lambda P. Lambda E और lambda P दोनों का वैल्यू सेम है 1 नैनोमीटर. तो दोनों का रेशियो मालूम है हमें, तो इसलिए 1/1. Therefore PP by P और P by therefore we have PP by P is equal to 1/1. Therefore we have PP upon, that is PP, that is momentum of linear momentum of proton
the ratio of linear momentum of proton to the linear momentum of electron, that is P. A small p suffix p, that is a proton, that is linear momentum of proton by linear momentum of electron, pp upon p is equal to क्या हो गया, lambda e upon lambda p, which is given lambda e upon lambda p, दोनों का वैल्यू कितना है 1 नैनोमीटर, that is 1 into 10 to the power minus 9 अपॉन 1 into lambda p भी उतना ही है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन भी 1 into 1 नैनोमीटर ही है, तो 1 into 10 to the power minus 9 मीटर, तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, that is pp अपॉन, that is linear momentum of proton, that is pp upon linear momentum of electron, p is equal to 1 by 1. It is 1, that is 1 by 1, and this is the answer of this problem, that is answer of the part 1 of this problem number 4. pp upon pe, the ratio of linear momentum of proton, symbol is pp upon pe, linear momentum of electron, ratio कितना हो गया 1:1. Now we have to solve part 2 of this problem, which is we have to compare the kinetic energy of the proton with that of the electron. अब इस पार्ट 2 में, इस प्रॉब्लम के पार्ट 2 में प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज केपी और ईपी, काइनेटिक एनर्जी को सिंबल के से या सिंबल कैपिटल ई से डिनोट किया जा सकता है, ई के से, तो के से यहाँ डिनोट करते हैं, तो केपी अपॉन के ई मालूम करना है, केपी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का रेशियो मालूम करना है पार्ट 2 में. तो वी हैव to obtain the ratio of Kp to Ke, that is kinetic energy, compare the kinetic energy of the proton with that of the electron. So in part 2 we have to find kinetic energy of proton, that is Kp, denoted, it is denoted by the symbol Kp, and kinetic energy of the electron Ke, we have to find it. Kp upon Ke we have to find it, that is note of interrogation, we have to find it. This ratio, इस रेशियो को ऑब्टेन करना है. अब इसके लिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है के ई इजकल टू काइनेटिक एनर्जी के ई और ई के, और के इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2m. मोमेंटम और मास के टर्म में काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, के इजकल टू काइनेटिक एनर्जी के इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2m. सो यूजिंग द रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के ई, जिसको के सिंबल से डिनोट किया जाए अगर, और ई के से भी डिनोट किया जाता है, ई कैपिटल ई सफिक्स में के देकर, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम upon twice into mass of the particle. Here particle is for proton it is mass of proton, for electron it is me, mass of electron. So from this relation we can write kinetic energy for proton is Kp, kinetic energy of proton we can write here p square, that is momentum of the proton, that is momentum of proton is pp, momentum of proton p सफिक्स में p दे दिया जाए प्रोटॉन के लिए, pp स्क्वायर upon 2 mass of proton, 2 into mp, mp is the symbol of mass of proton. This is equation number in part 1 2 का यूज किए थे पार्ट 1 में. This is equation number 3, that is kinetic energy of, this is kinetic energy of proton, that is ke, k dot e dot in the abbreviation for, in the abbreviated form, ke of the proton. प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी के पी इजकल टू पी पी स्क्वायर, पी पी इज द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाई 2 mp, mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन. नाउ सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज के ई इजकल टू पी स्क्वायर, पी इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 me, me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड सिमिलरली वी कैन राइट काइनेटिक के ई फॉर द इलेक्ट्रॉन, that is ke is equal to p e square upon 2 me. This is equation number 4 in part 2 of this problem. Now we have to find the ratio of kp upon ke, kinetic energy of proton to the kinetic energy of electron. Dividing 3 by 4 we can obtain it after dividing 3 by 4. So from 3 by 4 we have, from equation 3 by 4 we have kp upon ke is equal to, kp is given in equation 3, pp square, that is momentum of proton का square upon 2 mp upon k is p square, that is momentum of p is the momentum of the electron का square upon 2 mass of electron 2 me. kp upon ke is equal to pp square upon 2 mp upon p square upon 2 me. 2 से 2 तो कैंसिल हो गया. अब it can be written as pp square, pp अपॉन p का होल स्क्वायर कर दें, pp स्क्वायर बाई p स्क्वायर, दैट इज pp अपॉन p का होल स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई एम ई न्यूमरेटर में चला जाएगा, एम ई अपॉन एम पी। सो इट इज़ पी पी अपॉन पी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम ई अपॉन एम पी। और पार्ट 1, इस प्रॉब्लम के पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑब्टेन किया था उसका रेशियो, मतलब पी पी बाई पी का रेशियो ऑब्टेन किया था कितना, 1:1, 1:1। पी पी अपॉन पी हम लोगों ने ऑब्टेन किया था पार्ट 1 में 1:1। सो पी पी अपॉन पी इज 1/1 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सो इन द नेक्स्ट स्टेप we can write Kp, that is kinetic energy of proton, to the ratio of kinetic energy of proton upon kinetic energy of electron. So we will obtain the ratio of kinetic energy of proton to that of the electron, Kp by Ke is equal to Pp upon Pe। कितना आया, पार्ट 1 में हम ऑब्टेन किए थे हम लोग 1/1, 1:1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। 1/1 that is 1, 1 square is 1, that is now we have Kp upon Ke is equal to only we have Me upon Mp, mass of electron by mass of proton. We know mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 kg, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and mass of proton is 1.67 multiplied by 10 to the power minus 27 kg. अब डिनोमिनेटर में -27 है, 10 टू पावर -27, और न्यूमरेटर में 10 टू पावर -31, दैट इज कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर का पावर -31 अब कितना बच जाएगा, -4। 10 टू पावर -27 से 10 टू पावर -31 का -27 पावर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -4, चूँकि -31 है न्यूमरेटर में। नाउ वी कैन राइट इट एज 9.1 बाई 1.67, 1.67 into 10 to power -27 kg is the mass of proton, which is in place of Mp we have written here 1.67 into 10 to power -27 kg proton का मास है। Now we have 9.1 upon 1.67 is 910 upon 167 multiplied by 10 to the power -4. This is the ratio of kinetic energy of the proton, that is Kp, to that of the electron, that is kinetic energy of electron Ke, Kp by Ke। E stand for electron, P stand for proton। प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी Kp तथा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी Ke का रेशियो ऑब्टेन करना था, तो ऑब्टेन हमारा इस रिलेशन से हो रहा है, Kp अपॉन Ke इक्वल टू 910 अपॉन 167 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। अब 910 में 167 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम 5 टाइम्स जाएगा, 5.4 इंटू 10 टू पावर -4, दिस इज 5.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 आंसर। This is the ratio of kinetic energy of proton and kinetic energy of electron, Kp upon Ke is equal to 5.1 into 10 to the power -4. This is the answer of part 2 of this problem, that is problem number 4। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, जिसमें NCERT टेक्स्ट बुक का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है, और फिर नेक्स्ट 2 पार्ट, एटलीस्ट 2 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि CBSE टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए भी, उसके अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स 12th एग्जामिनेशन के लिए भी, नीट के लिए भी, IIT JEE के लिए भी। तो उन दोनों पार्ट्स को भी कम से कम 2 एटलीस्ट 2 रिमेनिंग पार्ट्स को भी मैं जल्द ही सॉल्व करूंगा, और उसका सॉल्यूशन लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के बीच आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।